Good morning, everyone. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Welcome back again in the online educational platform organized by Devas International School in the second part of chapter Organizing. Before getting started, hope you all have subscribed our channel and did not forget to click on bell icon so you will get such educational video in future also. So students, in the first half we have discussed about organizing like meaning, definition, concept and characteristics. Hope you all have visited to it. So in this video we are going to discuss some of the further characteristics and organizing process with following structure of organization. So students, as you all know that total 12 chapters are there in your BA textbook. We have completed up to 3. This is the second part of organizing. Without wasting much time, let's get started. So in the previous video we have discussed the meaning of organizing. Hope you all are remembered that organizing is to put things into order and structured. तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हर चीज़ को ऑर्डर में करना या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखना ताकि वो एक सिस्टम बने और वो सिस्टम हर कोई ईजीली एक्सेस कर सके. ठीक है, एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर्स ऑल्सो. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव completed up to characteristics. We'll recap that and then we'll move on. You all know that there are 9 characteristics of organizing, such as goal oriented activity, planning based activity, the delegation of authority and responsibility, importance of human element, flexibility in organizing, establishment of interrelationships, monitoring and control on the downline, group activity, and last, controlled administrative structure. So these 9 characteristics are considered to be the most important a part of organizing. यानी अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को समझना चाहते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये 9 आपको याद रखने ही पड़ेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर वन. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट वी विल डिस्कस द प्रोसेस. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड अबाउट प्रोसेस, let's understand the meaning broadly of organizing. As you all know, it is a process of creation, organization, structure. यानी ये एक संस्था का स्ट्रक्चर बनाती है, एक मूलभूत ढांचा बनाती है और यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल फ्रेमवर्क परफॉर्म करता है. जैसे चाहे वो ग्रुप्स को जॉब्स में डिवाइड करना हो या फिर उनसे काम लेना हो यानी कोऑर्डिनेट करना हो. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ये सारे काम ईज़िली परफॉर्म किए जा सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिव होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कितना इफ़ेक्टिव है. सो इन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर you can have a better efficiency, which involves 6 key steps which we'll discuss in further slide. So you can see a diagram on your screen which shows that planning is the first step to set the direction, and after planning the second step is organizing, which creates a structure. यानी जो भी हमने प्लान किया है उसे एक मूलभूत ढांचा यानी प्रैक्टिकल इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजिंग ही प्रोवाइड करता है. जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम अगले स्टेप्स भी देखेंगे जैसे कंट्रोलिंग और लीडिंग. उससे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की. So students, as you all know that organizing can be exist anywhere, whether the group of persons called institution or a structure of relationships. In the same way, ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को लीनियर अरेंज करती है और उनसे एक इफ़ेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करती है. सो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है डिफाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी जो भी हमारी संस्था को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है इन अ फॉलो टाइम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको उसे डिफ़ाइन करना होगा.
डिफाइन मीन्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और आप उसे कैसे अचीव करेंगे। सेकेंडली, आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जो भी टारगेट आपने दिमाग में रखा है उस टारगेट तक आप पहुंचने के लिए किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उन्हें आपको कैटेगराइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, द नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, यानी जो एक्टिविटीज़ जिससे सिमिलर हो आप उसे उसी ग्रुप में रखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी हैविंग मोर देन वन डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो मार्केटिंग का काम सिर्फ मार्केटिंग को दे, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आप कहें मार्केट डिमांड का पता करना, या फिर प्रमोशन करना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हुआ। सेकेंडली हम देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मे में सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ही आनी चाहिए। तो उसी तरीके से तीसरा जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो होता है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, द नेक्स्ट टास्क इज़ टू असाइन ड्यूटीज़, यानी जब प्लान ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने वाला होता है, उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, तो ड्यूटीज़ आपको लोगों के बीच में असाइन करनी होगी, जिससे लोगों के पास अथॉरिटी आएगी और वो अथॉरिटी को आगे डेलीगेट करेंगे, यानी बांटेंगे। आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन, यानी आपस में जो लोग सेम वर्क जॉब में हैं, सेम वर्क फील्ड में हैं, वो रिलेशन स्टैब्लिश करके, रिलेशन मीन्स आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एंड देन सेकेंड लास्ट स्टेप, इट्स प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, यानी जो भी काम उन्हें सौंपा गया है उस काम को करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिसोर्सेज की, वो भी आपको उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज़ को देनी होगी। एंड आफ्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप हो रहता है कोऑर्डिनेशन का, यानी आप आपस में कैसा संतुलन बनाइए ताकि ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ना सिर्फ कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रहे बल्कि वो इफ़ेक्टिव काम करें। सो फर्स्ट स्टेप, डिफाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट्स दैट विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बिल्ट। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ हमें हमारे टारगेट के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइंड बाय नंबर एंड नेचर, एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, यानी जो भी टारगेट आपने सोचा है, ठीक है, उस टारगेट को आप एक नंबर दीजिए, यानी आपके पास एक संख्या होनी चाहिए, आप न्यूमेरिकली उसे डिफ़ाइन कीजिए। उसके साथ साथ उसके नेचर को देखिए, यानी अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो क्या वो रियल सेंस में, रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द साइज़ एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो काम आप कितने बड़े लेवल पर करने वाले हैं, ये भी आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले पता होना चाहिए। आफ्टर डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, यानी जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड, सबसे पहले आपको उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है जो नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब बेहद ज़रूरी, जिसके बिना आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। और उसके बाद नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़, जिन्हें हम आगे जाकर इग्नोर कर सकते हैं, यानी बिज़नेस के वो खर्चे जिन्हें हम ना करके बिज़नेस का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकें। यानी पहले स्टेप, आप आइडेंटिफाई करिए नेसेसरी एक्टिविटीज़ कौन सी है और अननेसेसरी एक्टिविटी कौन सी है। देन नो ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी, यानी एक वर्क एक बार ही परफॉर्म होना चाहिए। अगर वो बार बार परफॉर्म होगा, बार बार उस सब्जेक्ट की अगर ओवरलैपिंग होगी, तो फिर एनर्जी के साथ साथ टाइम भी वेस्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी। ऑल दिस एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेटिंग मैनर, तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरी एक्टिविटीज़ के बीच में। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो के हिसाब से ये परफॉर्म की जानी चाहिए। थर्ड स्टेप शोज़ यू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए, हम हमेशा देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर्स ऑफ एक्टिविटी होती है, तो हम उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि कंपनी में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होने पर
सब डिपार्टमेंट्स को उनके अनुरूप यानी अकॉर्डिंग टू देम काम दिया जाना चाहिए। यानी प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क हैज़ टू बी असाइन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिलेटेड वर्क असाइन टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। इससे वर्क के प्रति ट्रांसपेरेंसी मीन्स हर इंसान को पता होता है कि उसे क्या काम करना है। एक्टिविटीज़ में बी ग्रुप बाय फंक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस भी हम अब उस एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी हमें ये सोचना होगा कि कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये सोचना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे कस्टमर्स चूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, हमें कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों के बारे में सोचना होता है। उसके बाद चौथा स्टेप आता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, यानी हम कैसे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में इंडिविजुअल लेवल पर डिवाइड करते हैं ताकि काम ओवरलैपिंग ना हो, यानी बार बार ना हो, और डुप्लीकेशन ना हो, यानी एक बार जो काम कर दिया गया है उसे दोबारा ना करना पड़े। ये आपको चौथे स्टेप में पता चलता है। द फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जब हमें पता चल गया है कि काम क्या करना है और कैसे करना है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो काम करेगा कौन। इसलिए appropriate amount of authority is delegated to the individual who have been assigned the activity, यानी जिस काम को करने के लिए कितनी अथॉरिटी की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, वो उस इंडिविजुअल को दी जानी चाहिए जिस इंडिविजुअल को वो काम सौंपा गया है। यानी सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एम्प्लॉय से कहते हैं कि आपको सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो उसे अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर सके, प्रमोशंस में चेंजेस कर सके, ताकि जो भी टारगेट उसे दिया गया है वो उसे पूरा कर सके। द सेवेंथ स्टेप शोज़ डिटरमाइनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काम क्या है पता चल गया है, कैसे करना है पता चल गया है, कौन करने वाला है ये भी पता चल गया है, तो जो लोग उस काम को करने वाले हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छे रिलेशंस होना ज़रूरी है। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनाइजेस यही डिफाइन करता है कि द बॉस एंड हु आर इज सबऑर्डिनेट, यानी आपस में सबको अपना वर्क अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए। एक सबऑर्डिनेट का काम है कि वो अपने बॉस की बात सुने, और एक बॉस का काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शन दे। द लास्ट सेकेंड स्टेप शोज़ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी यू हैव टू प्लेस राइट रिसोर्सेज ऑन अ राइट टाइम ऑन अ राइट प्लेस, यानी आपको अपनी संस्था में कार्य कर रहे उन सभी लोगों को वो पर्याप्त संसाधन देने हैं, यानी जितने रिसोर्सेज उन्हें चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए वो आपको उन्हें प्रोवाइड करवाने होंगे ताकि वो उस काम को फुलफ़िल कर सकें। एंड द लास्ट स्टेप शोज़ कोऑर्डिनेशन। See students, in the first part we have discussed that planning is the brain and coordination is the soul and body of organization. उसी तरह coordination ये एक ऐसा स्टेप है जो ऑर्गेनाइजिंग की इस पूरी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाता है। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो भी उन्होंने प्लान किया है और जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कभी भी उनके अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू देम नहीं होगा, यानी जैसा उन्होंने सोचा था वैसे रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ एसेंशियल बिकॉज इट enables ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू कीप चेक द गोल्स एंड रिड्यूस द इनएफिशिएंसी एंड हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी बिजनेस में काम करते समय अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है जो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं या फिर हार्मफुल है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस इनएफिशिएंसी को बिज़नेस से तुरंत निकाला जा सकता है ताकि सिस्टम को और बेटर बनाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दिस 9 steps or the steps of process of organization shows that organization itself consists a very wide concept. So thank you so much. In this video we have discussed about the process of organization. In the next step we'll back with the structure and different type of organizational structure. Till then, stay tuned for the latest updates. Subscribe our channel, hit a like button and don't forget to tap on bell icon. Thank you so much. Stay safe and healthy at home. Jai Hind.